Converse of Thales theorem. का स्टेटमेंट if a line is converse of Thales theorem, a statement statement is if a line is drawn if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the her side. This is your statement of converse of Thales theorem. And now we try to understand this statement, what is told in this statement. This is a triangle ABC and this is a line X, Y intersecting two sides AB and AC at point B and E. Given in triangle ABC, line XY divides the sides AB and AC at points D and E respectively, such that AB by DB is equal to AE by EC. This is given. This is a line that divides AB and AC at point D and E such that AD by DB is equal to AE by EC. To prove XY BC is parallel to BC or BC is parallel to BC, ये हमको साबित करना है और ये गिवन है
AD by DB and AE by EC. Now prove. हम मान लेंगे कि x y BC के पैरेलल नहीं है। पहले मान लेता हूं, तो मान लेते हैं कि डी एल वी सपोज we consider that BE is not parallel to BC. DL is parallel to BC. हम DE को पैरेलल नहीं मानते हैं BC के पैरेलल, BC के पैरेलल हम DL को मानते हैं। देन तब क्या होगा? Then by using Hell's theorem, DAD by DB is equal to AL by LC. But it is given that AD by DB is equal to AE by EC. This is given and this is obtained. ये पाया गया कब? जब DL को हमने पैरेलल लिया BC के, ये माना हुआ है, और DE पैरेलल नहीं है, तब ये आया है। और गिवन के अनुसार ये फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट। तो यहाँ LHS दोनों के बराबर है, RHS भी दोनों के बराबर हो जाएंगे। AL by LC is equal to AE by EC। LHS बराबर है, इसलिए RHS भी बराबर हो गया। अब दोनों तरफ एक ऐड कर देंगे, AL प्लस LC प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। AL प्लस LC बाय LC इज इक्वल टू AE प्लस EC बाय EC। This implies that AL plus LC means AC by LC is equal to AE plus EC means AC by EC। AC और AC दोनों तरफ से कैंसिल, तो एक बार LC is equal to 1 by EC, therefore LC is equal to EC। LC EC, LC और EC
यहाँ पे बराबर आ गया है, जबकि फिगर के अनुसार इसको बराबर होना संभव नहीं है। तो फिर बराबर हुआ, इससे क्या रिजल्ट निकल रहा है? ये निकल रहा है विच इज नॉट पॉसिबल बट it is possible only when point L coincides with point E and line DL coincides with line DE. Then we may say that DL parallel to BC indicates that DE is parallel to BC. तो ये साबित करना था। ये कंट्राडिक्टरी मेथड है, कंट्राडिक्टरी विरोधाभासी। ये साबित करना था कि DE मीन्स XY इज पैरेलल टू BC, लेकिन हम इसको पहले पैरेलल नहीं माने, पैरेलल ले लिए इसको, और उसके बाद DL को कोइंसाइड करवा दिए DE के। तो DL और DE एक ही लाइन बन जाता है, जिसके कारण यदि हम DL को पैरेलल माने हैं तो DE भी BC के पैरेलल हो जाए। ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम था, और कल हम चर्चा कर चुके थे थेल्स थ्योरम पे, और इन दोनों पे आधारित आपका NCERT में एक चैप्टर है, उसको आप बनाना शुरू करेंगे। लेकिन हम इस पर आपको चर्चा करेंगे कल। वैसे 6.1 है और 6.2 है, तो इस 6.1 और 6.2 पर हम लोग आएंगे कल। आज हम चर्चा करेंगे सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी सिमिलर फिगर पढ़ने के लिए कन्ग्रुएंट फिगर्स को भी जानना जरूरी है, और कन्ग्रुएंट फिगर्स हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9 में, कन्ग्रुएंसी टॉपिक में, चैप्टर में, और 10 क्लास में आया है सिमिलरिटी, और यहाँ सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। और सिमिलरिटी पढ़ने के लिए कन्ग्रुएंसी जरूरी है। तो हम लोग सिमिलर फिगर्स पर आते हैं। सिमिलर फिगर्स, सिमिलर फिगर किसे कहते हैं?
तो आपके किताब के अनुसार सिमिलर फिगर सिमिलरिटी एक प्रकार का कंपैरिजन है। दोज टू polygons having many sides, moreover number of sides and number of angles in a figure are equal. Those two polygons whose corresponding sides are proportional and their corresponding angles are equal. दो फिगर जिसमें साइड्स बराबर हो, एंगल्स भी बराबर हो, एज फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल लेते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं ABC और PQR। in triangle ABC and triangle PQR, if angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, means ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर हो जाए और ये एंगल इसके बराबर हो जाए। ये फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन में AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP. Then triangle ABC and triangle PQR are similar and denoted by the symbol triangle ABC is similar to triangle PQR. This is the symbol of similarity, and this symbol indicates two properties, this and this. This angle and this angle are called corresponding angles. This angle and this angle are called corresponding angles. This angle and this angle are called corresponding angles. AB is the corresponding side of PQ. BC is the corresponding side of QR. CA is the corresponding side of
RP। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे सिंबल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। A is the corresponding angle of P, B is the corresponding angle of Q, C is the corresponding angle of R. The order of the angles should not be changed. ये ऑर्डर और ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यदि ये चेंज हो जाता है तो फिर आपका हिसाब नहीं बनेगा। मोर ओवर BC, AB and PQ are corresponding sides. BC and Q are corresponding sides, and AC and PR are corresponding sides. So, in this symbol, the order of vertices of triangles should not be changed. This was the case of triangle in the case of similarity. Now, another example we may take as a quadrilateral. Second, this is a quadrilateral. This is also a quadrilateral. A, B, C, D, P, Q, R, S. In two quadrilaterals, दो क्वाड्रिलेटरल लिए हैं, two quadrilaterals such that first condition angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, angle D is equal to angle S. And second condition, AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CD by RS is equal to DA by SP. Then the quadrilaterals AB, CD and PQ, RS are similar. यदि ये कंडीशन फॉलो कर जाता है तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल भी सिमिलर हो जाएंगे। आगे इतना पे आधारित आपका एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 6.1 पेज नंबर 122, पेज नंबर 122 में है। और एक्सरसाइज 6.1 आप यदि सिमिलरिटी बनाना चाहते हैं तो
सबसे पहले तो आप थेल्स थ्योरम बनाएंगे और थेल्स थ्योरम में कल मैं आपके साथ रहूँगा। आज सिमिलरिटी सिर्फ समझा रहा हूँ और कल मैं थेल्स थ्योरम के न्यूमेरिकल पर रहूँगा और ज़्यादा हिसाब में नहीं बनाऊँगा। एक दो हिसाब बनाऊँगा, आगे बढ़ता जाऊँगा। सिमिलरिटी को समझने के लिए थोड़ा सा कन्फ्लुएंसी पर हम लोग विचार कर लें। ग्रुप एंड फिगर्स। Those two polygons of same sides whose corresponding sides are equal and corresponding angles are also equal, then the polygons are congruent. एग्जाम्पल लेते हैं एंगल का और कन्ग्रुएंसी बताना मेरा अभी धर्म नहीं है। सिमिलरिटी बता रहे हैं, सिमिलरिटी चल रहा है, 10th क्लास के सिलेबस में है सिमिलरिटी, लेकिन है यहाँ की सिमिलरिटी को समझने के लिए कन्ग्रुएंसी पर भी विचार करना पड़ेगा। और कन्ग्रुएंसी का यूज भी है। आप हिसाब बनाने लगेगा तो आपको कन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जानकारी बहुत जरूरी होगा। यदि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स या कन्ग्रुएंट फिगर की जानकारी नहीं रहेगी तो आपको हिसाब बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं सिमिलर ट्रायंगल, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल PQR। in triangle ABC and triangle PQR we have angle A is equal to angle B, angle B is equal to angle Q and angle C is equal to angle R, and second is AB is equal to PQ, BC is equal to QR and CA is equal to RP. Then triangle ABC and triangle PQR are congruent and denoted by triangle ABC is congruent to triangle PQR। यहाँ पे दो सिंबल आया है कन्ग्रुएंसी में। सिमिलरिटी का सिंबल ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। यहाँ पर ये सिंबल है सिर्फ सिमिलरिटी में, लेकिन कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये सिंबल आया है। इस डिफरेंस को समझने के लिए यहाँ पर ये चर्चा कर रहा हूँ। अब है कि ये दो यहाँ भी ऑर्डर चेंज नहीं होनी चाहिए। A is the corresponding angle of angle P, angle B is corresponding angle of Q, angle C is corresponding angle of angle R।
and AB is the corresponding side of PQ, BC is the corresponding side of QR, and AC is the corresponding side of PR. यहाँ से हमको दो सूचनाएं मिलती है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल PQR, ये दो सूचना दे रही है। ट्रायंगल ABC बराबर ट्रायंगल PQR, और दूसरी सूचना मिल रही है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। आपको ये और ये सूचना मिल रही है, इस पर हम लोग विचार कर चुके हैं। और इस केस में आपको AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू RP। मेन पॉइंट पर हम लोग विचार कर लें। मेन पॉइंट्स हैं ए नॉट्स। फर्स्ट पॉइंट, सिमिलरिटी और कंग्रुएंसी के संबंध में आया है। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर टू वन अनदर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर टू वन अनदर, all equilateral triangles are similar। इस तरह की बातें अगर कुछ फिगर पे आधारित क्वेश्चन है आपको 6.1। आगे आपको आ जाता है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में कुछ हिसाब है आपको दिया हुआ, ये आप घर पे बनाएंगे, लेकिन कुछ हिसाब मैं बनाऊंगा। कुछ हिसाब बनाने के पहले मैं चाहता हूँ कि थ्योरम पहले क्लियर कर दूँ, सिमिलरिटी से संबंधित सारा थ्योरम पहले क्लियर कर दूँ, और उसके बाद हम आना चाहते हैं एक्सरसाइज पे। सिमिलरिटी का डिफिनीशन अलग है, और सिमिलरिटी के लिए आपको कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। सिमिलरिटी में कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी, ये तीन कंडीशन आपको आएगा। एक है ए सिमिलरिटी, पहला है एंगल सिमिलरिटी, दूसरा है ये शॉर्ट में लिखते हैं ए सिमिलरिटी, दूसरा है आपको एस मीन्स साइड सिमिलरिटी, एस सिमिलरिटी। तीसरा है एस
साइड एंगल, साइड सिमिलरिटी, SAS सिमिलरिटी, ये 3 सिमिलरिटी हैं आपको, 3 प्रकार सिमिलरिटी है। तीनों सिमिलरिटी पे हम लोग बाद में विचार करते हैं बारी बारी से। पहला पढ़ाते हैं फर्स्ट। पेज नंबर 131 131 पे आपको एंगल क्राइटेरिया दिया हुआ है सिमिलरिटी का, और मैं उसको लिख रहा हूँ। ए सिमिलरिटी एंगल सिमिलरिटी में इन टू ट्रायंगल्स corresponding sides, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are proportional and hence the two triangles are similar. इसमें 2 कंडीशन दे दिया है साबित करने के लिए। गिवन में है एंगल्स शुड बी इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो 2 बातें साबित करनी है यहाँ पर कि देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और तब कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। गिवन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर साबित करने के लिए 3 केस से साबित होता है, लेकिन हम एक ही केस साबित कर पाएंगे। यहाँ पर कोशिश करूँगा समझाने का, तीनों केस ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन मैं एक केस समझा रहा हूँ। A B C P Q R in triangle ABC and
triangle PQR, we have, according to this statement, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R. This is given. To prove में दो केस आएंगे. एक केस AB by PQ is equal to BC by QR is equal to CA by RP, and और दूसरा साबित करना है ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR. ये दो केस इनको साबित करना है यहाँ से. इसमें ये ट्रायंगल का साइज छोटा और ये ट्रायंगल का साइज बड़ा लिया हूं. कैसे बोल रहा हूं? नहीं, ये ट्रायंगल का साइज बड़ा हो सकता है, इस ट्रायंगल का साइज छोटा हो सकता है. कैसे? तीन केस. दोनों ट्रायंगल के साइड्स इक्वल हो सकते हैं क्योंकि एंगल बराबर दिया हुआ है. दोनों ट्रायंगल के साइड्स इक्वल हो सकते हैं. अथवा इस ट्रायंगल के साइज छोटा है तो इस ट्रायंगल का साइज बड़ा हो सकता है. अथवा इस ट्रायंगल का साइज बड़ा होगा तो इस ट्रायंगल का साइज छोटा हो सकता है. ये तीन केस हो सकता है, लेकिन यहाँ हम ले लिए हैं कि ट्रायंगल ABC का साइज छोटा है और ट्रायंगल PQR का साइज बड़ा लिया है. कंस्ट्रक्शन की कुछ बात आई. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे कि वी हैव टेकन, हमने लिया ऐसा. कैसा लिया? AB बटे PQ इज इक्वल टू BC बटे QR इज इक्वल टू CA बटे RP is less than 1. Therefore, AB is smaller than PQ and AC is also smaller than RP. बीच वाला मैं छोड़ दिया हूँ. BC और QR. AB छोटा है PQ से और AC भी छोटा है QR से. So we cut PQ and PR at points D and E such that AB is equal to PT. D यहाँ से लिया हूँ T D E and AC is equal to PE. ये कंस्ट्रक्शन वर्क ले लिया. AB के बराबर PD और AC के बराबर PE मैं मान लिया हूं. अब प्रूफ आता है. प्रूफ में हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल ABC
और पी डी ई को कन्ग्रुएंट करेंगे पहले। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का यूज 10th क्लास में है, सिमिलरिटी में है। सिमिलरिटी को सॉल्व करने के क्रम में कन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ेगी कदम कदम पे। प्रूव करने के लिए हमको ट्रायंगल ABC और PDE को पहले कन्ग्रुएंट हम कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PDE करना होगा। छोड़ दें, आधा घंटा हम लोग कल बात करेंगे आगे इस थ्योरम पे। और पहले हम थ्योरम निकाल लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज प्रॉब्लम पे हम आएंगे। थैंक यू।